Hello students. So today we are going to start chapter number 15 named The Girl Who Was Always Late. So it is a story about a girl who was always late in doing her things, whether it is to have lunch, to go to school, to play games and even for picnic. So being late taught her a lesson. So let's start reading this story to know about that. Are you ready in time to catch your school bus or do you miss it often? Read this story about a girl who had to pay heavily for being late frequently. So, Smita is the name of the girl. So, her mother is saying the first line, Smita, do get up or you will be late for school. Said Mrs. Gupta, shaking her sleeping daughter awake. It is already 7:30 now and the school bus comes in half an hour to pick you up. So hurry up and get dressed. So स्मिता की मदर उससे कहती हैं कि स्मिता उठो, अदरवाइज तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. वो अपनी डॉटर को शेक करते हुए कहती हैं. क्योंकि देखो 7:30 ऑलरेडी हो चुकी है और हाफ एन आवर में तुम्हें स्कूल बस पिक करने के लिए आ रही है और तुम्हें अभी रेडी भी होना है. स्मिता सेट अप इन बेड एंड yawned. शी वॉज एन एथलेटिक गर्ल स्टडिंग इन अ स्कूल सिचुएटेड इन Thane on the outskirts of the city of Mumbai. Smita was a brilliant student, always standing first in her class. This should have made her parents and teachers very happy. But for her annoying habit of being always late, she was always late for school, late for lunch, late for games, game-filled and even late leaving school each day when the final bell had gone. So स्मिता अपने बेड से उठती है यौन करते हुए. यौन मीन्स उबासी लेना. स्मिता एक एथलेटिक गर्ल थी और वो एक स्कूल में पढ़ती थी जो कि थाने में था. थाने जो मुंबई से आउट एरिया में है. स्मिता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और इसी की वजह से उसके पेरेंट्स और उसकी टीचर्स को उस पर प्राउड होना चाहिए था. बट उसकी एक हैबिट थी लेट होने की जो कि उन सबको अनोय करती थी. The usual routine of almost every other morning was now enacted. Smita hurriedly finished her bath and breakfast and rushed for the front door. तो स्मिता ने वही डेली वाली रूटीन को फॉलो किया. वही रूटीन स्टार्ट हो गई और वो फटाफट से उसने बात ली, ब्रेकफास्ट किया और फ्रंट डोर पर स्कूल जाने के लिए गई. द स्कूल बस लेफ्ट 5 minutes ago, said her mother. I shall have to drop you to school in the car. This is not the first time this has been happened, Smita. Remember, she missed the class picnic last month, said her mother, frowning at the memory. Really, Smita, you should learn to do things faster. So, स्कूल बस 5 मिनट पहले ही चली गई है, उसके फादर ने कहा, और अब मुझे तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ेगा. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है स्मिता. उसकी मदर क्या कहती है, रिमेंबर लास्ट मंथ तो स्मिता ने अपनी स्कूल पिकनिक भी मिस कर दी थी लेट होने की वजह से. उसकी मदर कहती है, स्मिता, यू शुड लर्न टू डू द थिंग्स फास्टर. As Mr. Gupta drove the car towards her school, Smita remembered the incident referred to by her mother with anger. Her class teacher had planned an excursion for her class to Mad Island. जब स्मिता की मदर ने उस इंसिडेंट के बारे में बोला, स्मिता को वो जो मेमोरी थी वो उसके माइंड में आ गई. मेमोरी क्या थी? एक बार उनकी टीचर्स उनकी पूरी क्लास को मैड आइलैंड लेकर जा रही थी. Every girl had been told to bring one item of food along with her. Smita decided to make some cheese sandwiches and orange juice on the morning of the picnic and take them along as her contribution. She had got up early in high spirits. On the day of the picnic, she had got ready in time and was out of the house when Mrs. Gupta had called out anxiously to her. उनकी टीचर ने उन्हें कहा था कि हर गर्ल अपने साथ कुछ फूड आइटम लेके आएगी. तो स्मिता ने डिसाइड किया कि वो चीज़ सैंडविचेस और ऑरेंज जूस लेकर जाएगी एज हर कॉन्ट्रीब्यूशन. उस दिन स्मिता को जल्दी उठना था. वो जल्दी रेडी हुई और अपने घर से जब बाहर जाने लगी, स्मिता की मदर ने क्या कहा, हैव यू टेकन योर सैंडविचेस एंड ऑरेंज जूस, शी हैड आस्क्ड एंड स्मिता हैड स्टॉप्ड डेड इन हर
tracks. So जब उसकी मदर ने कहा कि क्या तुमने अपना सैंडविचेस और ऑरेंज जूस लिया है, सो स्मिता 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टॉप हो गई. Oh no, I forgot to make the sandwiches, she had said in dismay. And now there is hardly time left. So वो कहती है कि मैं तो सैंडविचेस बनाना भूल गई और अब तो टाइम भी नहीं है. I will help you to make and cut them, said her mother kindly. And both of them hurriedly plastered cheese on the bread slices, cut them into triangular pieces, and packed them in a plastic bag. Smita borrowed her brother's bicycle and rushed to the school, only to be confronted with an empty classroom. So स्मिता की मदर ने उसकी सैंडविचेस बनाने में हेल्प की फटाफट, और जब वो अपने ब्रदर की साइकिल बोरो कर कर स्कूल में गई, तब उसने देखा, उसने कन्फ्रंट यानी कि फेस किया कि क्लासरूम वॉज एम्प्टी. Smita Gupta, why are you so late for the picnic? Said a voice behind her. She had turned to see her physics teacher, Mr. Singh, frowning at her. Your class waited a quarter of an hour for you, but they have all just left for Mad Island. Could you not be quicker, girl? So Smita Gupta को एक साउंड आई पीछे से, और वो साउंड थी उसके फिजिक्स टीचर की. उन्होंने कहा कि स्मिता गुप्ता, वाई आर यू ऑलवेज लेट फॉर द स्कूल? तुम्हारी क्लास ने क्वार्टर ऑफ एन आवर तुम्हारा वेट किया और जस्ट मैड आइलैंड के लिए चले गए हैं. क्या तुम कुछ काम जल्दी नहीं कर सकती? वेल, आई डिड नॉट रियली माइंड मिसिंग दैट पिकनिक एनीवे, थॉट स्मिता इन द कार एज शी एंटर्ड हर क्लासरूम. One of the girls called out sarcastically, "Here is Miss Never on time at last." So स्मिता ने कहा कि मुझे उस पिकनिक के छूटने का इतना माइंड नहीं था. जैसे उसने क्लास में एंटर किया तो एक गर्ल ने sarcastically मीन्स टोंट वे में कहा, "Here is Miss Never on time. Did you go on picnic all by yourself today?" sniggered a girl from another corner of the class. Seriously speaking, Smita, I shall have to report to our teacher if you are late every day in this manner, said the class monitor in a grim voice. I do hope you will try to come to time on in future. So, एक क्लास मॉनिटर ने क्या कहा कि स्मिता, अगर तुम ऐसे ही डेली लेट होगी तो मुझे क्लास टीचर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा. मैं होप करती हूँ कि आगे से तुम टाइम पर आओगी. Smita Gupta nodded assent to the monitor, ignored the other class and was soon absorbed in her lessons. So Smita Gupta ने मॉनिटर को एग्री किया और बाकी गर्ल्स को इग्नोर किया और अपने लेसन्स को लर्न करने लगी. The final examinations were drawing near. Smita had been studying hard every night, hoping to obtain the first position in her class this time too. But as usual, on the first day of the finals, Smita was late in leaving school. She rounded the corner of the street just in time to see the school bus driving away from the area she lived in. क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन पास थी तो स्मिता एवरी नाइट स्टडी करती थी. शी वॉज स्टडिंग वेरी हार्ड ताकि वो फर्स्ट पोजीशन अटेन कर सके. बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनल्स स्मिता वॉज लेट इन लिविंग स्कूल, और जैसे ही उस स्ट्रीट से वो निकली तो उसने देखा कि उसकी बस वहाँ से जा रही थी. ओ नो, शी थॉट इन फ्रस्ट्रेशन टू हर सेल्फ, हाउ विल आई रीच द स्कूल इन टाइम? इवन फादर इज़ आउट ऑफ टाउन टूडे. तो मैं स्कूल में कैसे जाऊँगी, उसने अब खुद से ही फ्रस्ट्रेशन में कहा. आज तो फादर भी आउट ऑफ टाउन है. She had hardly gone about a furlong when a passing car slowed down beside her. The man behind the car steering wheel poked his head out of the window and asked her, "Are you late for school? Can I give you a lift?" So वो थोड़ा ही आगे पास किया था तो उसने देखा कि एक कार पीछे से आई और जो पर्सन कार को ड्राइव कर रहा था उसने अपना हेड आउट किया और बोला कि क्या मैं तुम्हें स्कूल के लिए लिफ्ट दे दूं अगर आप लेट हो रहे हो. So Smita hesitated for a minute, but the thought of missing her examination weighed heavily on her. Forgetting her qualms about accepting help from a total stranger, she gave the name of her school, smiled her thanks, and settled down on the back seat. So Smita को पहले तो hesitation हुई, but उसने सोचा कि उसकी एग्जामिनेशन मिस हो जाएगी. स्टिल वो अपने जो उसकी मदर ने उसे कुछ चीज़ें सिखाई थी कि टोटल स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेनी है, उसको भूल गई और उस पर्सन को अपने स्कूल का एड्रेस दे दिया.
और थैंक यू करते हुए कार में बैठ गई। The car picked up speed and moved fast through the busy traffic on the main streets. Gradually, the shops and the buildings on either side faded away to be replaced by green fields of paddy flanking an almost empty road. स्मिता जब उस कार में बैठी तो वो काफ़ी स्पीड से चल रही थी और सडनली बिल्डिंग सारी पीछे जाने लगी और सारे उनके प्लेस पर ग्रीन फील्ड्स आ गए और एक एम्प्टी रोड आ गया। वेयर आर यू टेकिंग मी सेड स्मिता इन एन अलार्म टू द ड्राइवर इन फ्रंट। दिस इज़ नॉट द वे टू माई स्कूल। स्मिता ने कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये मेरे स्कूल का रास्ता नहीं है। द बिग मैन इन द फ्रंट सीट लाफ्ड। आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर सम टाइम दैट यू लीव योर स्कूल हाउस लेट फॉर स्कूल ऑन मैनी डेज, he said with a sneer. It seemed a good idea to kidnap you, keep you confined in an old shed that I own in खंडाला। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है कि तुम स्कूल के लिए लेट होती थी, तो ये बहुत अच्छा प्लान था कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ। और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें किडनैप करूँगा और मैं तुम्हें अपने एक ओल्ड शेड में जो कि खंडाला में है वहाँ पर रख लूँगा। I am sure your parents will be willing to deal with me and pay me a couple of lakhs as ransom for your safe return. Now sit still till we reach Khandala unless you want me to tie you up. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एक डील करूँगा और वो श्योरली मुझे रैंसम मीन्स फिरौती जो कि किडनैपर्स इन रिटर्न लेते हैं, सो वो ज़रूर मुझे रैंसम के अमाउंट में कुछ लैक्स देंगे। चुपचाप बैठ जाओ अदरवाइज मैं तुम्हें बांध दूंगा। किडनैप्ड स्मिता वॉज डम्बफाउंडेड विद शॉक। द कार हैड लेफ्ट मुंबई सिटी फार बिहाइंड एंड देयर वर नॉट मैनी व्हीकल्स और पीपल अराउंड। वट कुड शी डू टू सेव हर सेल्फ। सो स्मिता चुपचाप शॉक में बैठ गई और उसने देखा कि सारे व्हीकल्स पीछे चले गए थे, अब उसे कौन बचा सकता है। एज हर फिंगर्स रमेड नर्वसली इनसाइड हर स्कूल बैग दे एनकाउंटर्ड समथिंग स्लिपरी इनसाइड plastic. It was the big empty plastic bag in which the picnic sandwiches had been packed, forgotten and had left behind within her school bag along with her books. As she drew it out, Smita suddenly had a brainwave. तो वो अपने डरते हुए अपने बैग में फिंगर से कुछ सर्च कर रही थी, तो तभी उससे एक प्लास्टिक बैग दिखा जो कि उसमें सैंडविचेस थे और वो उसे निकालना भूल गई थी। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। डेस्परेटली होपिंग हर आइडिया वुड वर्क, शी इन्फ्लेटेड द बैग, held it taut in her hand, and in one swift movement dashed it hard against the back of the front seat. तो उसने अपने आइडिया को सोचा कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, और फिर उसने क्या किया कि स्विफ्टली एक ही मूवमेंट से उस बैग को फ्रंट सीट पर हिट किया। तो bang, the loud explosion settled the kidnapper and he groaned, just the wrong movement of the tire to burst. He said angrily and got out of the car to investigate. तो उस किडनैपर को लगा कि शायद जो टायर है वो बर्स्ट कर गया है और वो कार से बाहर आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। That was enough for Smita. In a trice, she slipped out of the car on the other side. She ran for dear life in the direction they had come from. Hey, stop! Shouted the kidnapper and ran after her a little while along the road, but had to abandon the chase as Smita proved too fast for him to catch up with. So स्मिता के लिए काफ़ी था क्योंकि जैसे ही वो पर्सन बाहर आया सो स्मिता वहाँ से एस्केप किया और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी। सो ड्राइवर उस किडनैपर ने क्या कहा कि रुको, बट उसे स्मिता का पीछा करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्मिता बहुत तेज़ रन कर रही थी। क्लचिंग हर स्कूल बैग, स्मिता वॉकड एट अ स्टडी पेस टुवार्ड्स मुंबई अंटिल शी हैड कवर्ड नियरली अ माइल। शी वॉज स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी। उसने काफ़ी सारा रोड कवर कर लिया था बट स्टिल वो काफ़ी दूर थी अपने सिटी से। एंड क्लोज टू टीयर्स व्हेन द सडनली हर्ड अ फेमिलियर वॉइस स्पीकिंग टू हर। और वो रोने लगी जब उसने सुना कि एक फेमिलियर वॉइस ने उसे बुलाया। इज दैट स्मिता गुप्ता? व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन ऑन द रोड, सो फार फ्रॉम योर स्कूल एंड हाउस? थैंक गुडनेस, स्मिता exclaimed in sheer relief as she turned to see her father's friend and colleague. सो
एक उसे वॉइस आई, इज दैट स्मिता गुप्ता, बट व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ये तो तुम्हारे स्कूल और हाउस से बहुत दूर है। सो स्मिता ने एक्सक्लेम्ड किया और थैंक गॉड कहा, और क्योंकि वो वॉइस किसकी थी, उसके फादर के फ्रेंड की। सो मिस्टर केशवान, एज हिज मोटरसाइकिल एस्टोनिशमेंट ऑन हिज फेस, she poured out of the whole story to him hurriedly, and he listened with a grim face. It was very lucky for you that I happened to come to Kalyan on official work and stopped you here, he said, and as you have been clever enough to note and make a number to the kidnapper's car. तो उन्होंने कहा, जब स्मिता ने उसे सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि तुम लकी थी कि मैं यहाँ पर आया हुआ था, और ये बहुत क्लेवर थिंग है दैट तुमने किडनैपर की कार का नंबर नोट कर लिया है. आई हैव नो डाउट दैट ही विल बी इवेंचुअली कॉट, बट नाउ let me drop you at your school on my motorcycle. Maybe you can still have your examination today. Smita reached her school an hour late, but on Mr. Keshwan explaining matters to her class teacher, she was allowed to sit for the examination that day. So Smita को उसकी टीचर ने अलाउड कर दिया एग्जामिनेशन देने के लिए, बट जब रिजल्ट आया she was disappointed to see that she had slipped down from the top position to 4th place. So अब वो 4th place पर आ गई थी फर्स्ट पोजीशन से. सो इस लेसन से स्मिता ने लर्न किया कि वो अब कभी भी लेट नहीं होएगी, और वो अपने सभी थिंग्स को टाइम पर करेगी, और उसने खुद से ही प्रॉमिस किया कि दैट शी विल बी नेवर लेट अगेन. वाई? बिकॉज शी हैड टू फेस दिस बैड थिंग्स ड्यू टू हर हैबिट ऑफ बीइंग लेट. सो दिस वॉज अबाउट द गर्ल हु वॉज ऑलवेज लेट.